Good morning class, my name is Nazia Ashfaq and I am your course instructor for the course of psychopathology for this semester, and it's 12th lecture today for you this semester, and the topic we're going to cover today is another class of disorders of childhood and adolescence, and the cluster of disorders we're going to cover today is particularly known as learning disabilities. So in today's class, we're basically going to discuss what learning disabilities are, what are various types of learning disabilities, how do you manage that, and basic tips on looking into these different types of learning disabilities. So we'll start the lecture with basic definition of what is a learning disability. So the first thing you need to understand that any learning disability which we're going to cover in our further lecture is actually a neurological disorder. When we say a neurological disorder, it means that there are basically traces or causes or bases of the disorder in the brain of the person, or in other words we could also say that a person's brain is wired in different form as compared to the children who do not have learning disabilities or who are considered normal as opposed to those with learning disabilities. So basically learning disability is a problem or is a hindrance in the learning process. Now this learning could be learning language, it could be learning mathematical skills, written skills, language, spoken skills, any sort of these learning process. When it has a hindrance or when it has a hampering or when there is some slow down process related to the learning or when there is some hindrance in the learning process, that comes under the term of learning disability. So the children with learning disabilities, they are basically smart or smarter than their peers, but they have difficulty reading, writing, spelling, reasoning, recalling and organization of different information. So in dealing with learning disability children, you have to keep in mind that they're taught in different ways as compared to the children or individuals who do not have any learning disability. So I would just repeat what exactly is a learning disability. Learning disability is a disability which is related to the tasks involved in learning process. It could be related to reading, writing, spelling, reasoning, recalling, all those tasks which are related to the process of learning or which are involved in the process of learning any skill, any task, any assignment. Those disabilities are known as learning disabilities. Okay, now we'll have a severity of learning disability. Now learning disability severity can be mild, can be moderate, or it can be severe. First of all, we're going to see how or what is mild learning disability. Now when it is milder level, those people or individuals or children, they can easily look after themselves, but they need a bit longer than usual to learn new skills. They can communicate, but they need time to communicate themselves or to understand things from other people. And then we have some adults with learning disability are able to live independently while others need help, such as in washing, dressing. Now why do they need help in these skills? Because they are unable or there is slow down process of learning in how to do these skills. Okay, so children with or individuals with learning disabilities, they have special needs. They cannot be taught tasks in regular ways or in conventional ways. उनको आप आम बच्चों की तरह नहीं सिखा सकते, उनको समझा नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल तरीके डिज़ाइन करने पड़ते हैं उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको लर्न कराने के लिए, उनको इस काबिल बनाने के लिए कि वो चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर सकें. ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी की डिटेल पे. अब लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसको आप क्योर या फिक्स कर सकते हैं, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग इशू. ठीक है, यानी इस पे काम किया जा सकता है लेकिन ये लंबे अरसे तक या फिर कुछ केसेस में या बहुत सारे केसेस में तमाम उम्र तक जो है वो चलता है, विच इज़ वाई इट अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ्स इन ब्रॉडर एरियाज, इन देयर करियर्स, इन देयर सोशल लाइफ, इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर पेरेंटल लाइफ. और ऐसे बच्चों को आप उनकी वीकनेसेस पे अगर काम करें और जो स्ट्रेंथ्स उनके अंदर हैं उनको इनकरेज करें, उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, उनके लिए वेज डिज़ाइन करें, तो दीज पीपल कैन एक्सेल इन वट एवर वर्ल्ड्स और वट एवर फील्ड्स दे आर
working in. Now we have some facts about learning disabilities. According to some facts, in US population के अमेरिका में 15% ऑफ US population, और अगर हम और लफ्ज़ों में कहें कि हर 7 में एक जो इंडिविजुअल है या जो एक बच्चा है उसको किसी न किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी का वो शिकार है. इट कुड बी रिलेटेड टू लैंग्वेज, इट कुड बी रिलेटेड टू रीडिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है. अब लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप जो है वो रीडिंग और लैंग्वेज से रिलेटेड है, और इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हैं. एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑफन रन इन फैमिलीज़ के फैमिलीज़ में ट्रांसमिट भी हो रही होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, नाउ द फाइनल थिंग यू नीड टू अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को आप परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर प्योरली लर्निंग रिलेटेड. ठीक है. रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल स्किल्स, लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है लर्निंग डिसेबिलिटीज़. और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू चाइल्डहुड जैसे कि ADHD हो गया उसके साथ भी अकर हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम डिसऑर्डर नहीं होते. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. देन वी कम टू द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. अब अगर हम थोड़ी सी टाइप्स डिस्कस करेंगे उससे आपको समझ आ जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो डिटेल में बेसिकली हैं क्या. तो विल डिस्कस सम टाइप्स एज पर द DSM-5 ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज़. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये एक लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी है जिसके बीच में जो इंसान या जो बच्चा जिसको ये डिसेबिलिटी है उसको रिटन वर्ड्स को समझने में जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये डिसेबिलिटी हो रहा है. इसको रीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं कि वो रीड नहीं कर सकता. वर्ड्स लिखे कुछ और होंगे, उसको समझ कुछ और आएंगे. तो देयर इज़ प्रॉब्लम बेसिकली इन रीडिंग द लैंग्वेज. दिस इज नोन एज डिसलेक्सिया. दूसरा है डिसकैलकुलिया. अब डिसकैलकुलिया जिस तरह के आपको नाम से समझ आ रहा है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन किस चीज़ में आ रही है? मैथमेटिक्स में. तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है जिसके बीच में उस बच्चे या इंसान को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स या फिर मैथ कॉन्सेप्ट समझने और अप्लाई करने में. यानी इट कुड बी रिलेटेड टू लर्निंग नंबर्स, सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें उसको समझ नहीं आएंगी. Anything which is related to maths or mathematical skills come under this type of disability. The children or the individuals in this type of disability, उनको mathematical skills में ख़ास तौर पर प्रॉब्लम होगा. उनको लैंग्वेज एरिया में प्रॉब्लम नहीं होगा. They will have problem in calculation और mathematical areas. उसके बाद the next type of learning disability is dysgraphia. अब डिस्ग्राफिया जो है वो ग्राफ से आ रहा है. एंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ राइटिंग डिसेबिलिटी जिसके बीच में पर्सन फाइंड्स इट हार्ड टू फॉर्म लेटर्स और राइट विद इन अ डिफाइंड स्पेस. कि उसमें राइटिंग से किस तरह कि उसको समझ नहीं आएगा कि किन लेटर्स को मिला के एक पर्टिकुलर वर्ड लिखना है, या कैसे एक गिवन स्पेस में एक वर्ड लिखना है या एक लेटर लिखना है. इस तरह की डिसेबिलिटी जो है वो डिस्ग्राफिया कहलाएगी. उसके बाद है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स. एज द नेम सजेस्ट कि ये सुनने और देखने से रिलेटेड कोई जो है वो डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होगा. अब इसमें सुनने और देखने में क्या है कि उसको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी और वो नॉर्मल लोगों की तरह सुन और देख नहीं सकेगा. दिस इज़ नोन एज ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स. उसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी वी हैव इज़ नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी. इसमें क्या है कि उसको जो है वो नॉन वर्बल एरियाज जो हैं उनकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. यानी एक्शंस किसी के नहीं समझ आ रहे, किसी के जेस्चर्स नहीं समझ आ रहे, अपने एक्शन समझाए नहीं जा रहे, अपने जेस्चर्स समझाए नहीं जा रहे. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहलाएंगे या उनको कहा जाता है. अब हम कुछ देखेंगे कि कॉमन साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डायग्नोज होने से पहले क्या अलामात होंगी जिनको देखते हुए, जिनको ध्यान में रखते हुए एनी प्रोफेशनल, एनी काउंसलर और एनी टीचर और अ पेरेंट could assess that the child or the individual is leading towards any sort of learning disability.
अब अगर वो इंसान प्री स्कूल लेवल पे है तो उसके साइंस क्या होंगे? पहला साइन कि वो बोलना देर से शुरू करेगा। अगर कोई बच्चा बहुत देर से बात करना शुरू कर रहा है, दिस कुड बी एन इंडिकेटर लीडिंग टूवर्ड्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स, यानी उससे लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा, लफ्ज़ बोले नहीं जाएंगे। वोकैबुलरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होगी कि उसकी वर्ड्स उसको याद नहीं होंगे, उससे बोले नहीं जाएंगे। डिफ़िकल्टी इन राइमिंग वर्ड्स, के आमतौर पे अगर आप बच्चों को वर्ड्स सिखाएं तो वो राइमिंग वर्ड्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये बच्चे जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स को याद नहीं रख सकते या समझ नहीं सकते। ट्रबल लर्निंग नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, डेज ऑफ द वीक, कलर्स और शेप्स, कि इन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये नंबर्स जो हैं, ये अल्फ़ाबेट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो याद नहीं कर सकते और उनको याद रख भी नहीं सकते। एक्सट्रीमली रेस्टलेस एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार होते हैं, जगह बैठ के टिक नहीं सकते, किसी काम पे फोकस नहीं कर सकते। ट्रबल इंटरैक्टिंग विद पीयर्स, की एनजाइटी में इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने पीयर ग्रुप या अपने इर्द गिर्द के जो बच्चे या और लोग हैं उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इनको कोई डायरेक्शंस दें, कोई वो दें, साइंस दें फॉलो करने के लिए, या कोई रूटीन बना के दें, कोई चार्ट्स बना के दें, ये उनको फॉलो नहीं कर सकते। और इनके फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो बहुत स्लोली डेवलप होते हैं, ठीक है, जिसमें आ जाएगा कि पेंसिल नहीं पकड़ सकेंगे, या राइटिंग नहीं कर सकेंगे, या ड्राइंग नहीं कर सकेंगे, स्केच नहीं बना सकेंगे। इस तरह की साइंस अगर आपको नज़र आए इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो दिस कुड बी एन इंडिकेटर दैट द चाइल्ड माइट बी लीडिंग टूवर्ड्स सम लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आ जाते हैं ग्रेड्स प्री नर्सरी टू 4, कि अगर बच्चा स्कूल जाने की एज से लेके 4th ग्रेड तक या 4th स्टैंडर्ड तक किस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे जो आपको ये निशानदेही कर सकते हैं कि द चाइल्ड और द इंडिविजुअल माइट बी लीडिंग टूवर्ड्स या माइट बी ग्रोइंग टूवर्ड्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इस एज ग्रुप में क्या होगा? स्लो टू लर्न द कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स, कि आमतौर पर जब आप बच्चों को सिखाते हैं कि ए का ये आवाज़ है आ, ए, इस तरह के जब आप साउंड उनको सिखाते हैं तो वो सीख सकते हैं। ये बच्चे सीख नहीं सकेंगे। दूसरा साइन क्या है कि ये बेसिक वर्ड्स को आपस में कंफ्यूज करेंगे, जैसे रन, ईट, वांट की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि ये तीनों बड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं और ये आपस में एक दूसरे इन तीनों वर्ड्स को मिला के या वर्ड्स बनाएंगे या इनको गलत बोलेंगे या इनको सीख नहीं सकेंगे, ठीक है। फिर स्पेलिंग एरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप इफ़ यू लुक क्लोजली एट द स्लाइड यू हैव एन एग्जांपल कि फेल्ट को लेफ़्ट बोलेंगे या लिखेंगे, उलट लिखेंगे और उलट बोलेंगे, उलट समझेंगे। उसके बाद नंबर सीक्वेंसेस को कंफ्यूज करेंगे, अर्थमेटिक साइंस को कंफ्यूज करेंगे, यानी प्लस का साइन इनको अगर आप डाल के देंगे तो ये उसको माइनस कर देंगे, माइनस के साइन पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे। फैक्ट्स इनको याद नहीं रहेंगे, मेमोरी इनकी वीक होगी। कोई नए स्किल्स अगर आप इनको सिखाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल से सीखेंगे। प्लानिंग नहीं कर सकेंगे अपनी लाइफ में, पेंसिल ये बिल्कुल नहीं होल्ड कर सकेंगे। और टाइम के बारे में जिस तरह बच्चों को सिखाया जाता है कि टाइम देखना या घड़ी देखना, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये लोग नहीं लर्न कर सकेंगे। और आखिरी क्या साइन है कि पुअर कोऑर्डिनेशन, अनअवेयर ऑफ फिजिकल सराउंडिंग्स, प्रोन टू एक्सीडेंट्स, की कोऑर्डिनेशन नहीं है मेंटल और फिजिकल, इस वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स यानी चलते फिरते गिर जाएंगे, कभी किसी चीज़ में जाके लगेंगे, कभी किसी चीज़ में लगेंगे, इस तरह की जो है वो एक्सीडेंट प्रोननेस इन लोगों में बहुत ज़्यादा होगी। ओके, नाउ कमिंग टू ग्रेड 5 to 8, कि अगर 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे हैं उनमें आप किस तरह के साइंस देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस कुड बी एन इंडिकेटर लीडिंग टूवर्ड्स लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ग्रेड 5 to 8 में साइंस क्या नज़र आएंगे? पहला है रिवर्सेस लेटर सीक्वेंसेस, जो कि हम पहले वाले में देख चुके हैं कि लेफ़्ट को फेल्ट और फेल्ट को लेफ़्ट पढ़ेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे। उसके बाद है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को जो है वो लर्न नहीं कर सकेंगे। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या हैं कि जो वर्ड से पहले लगते हैं या वर्ड्स के बाद लगते हैं, जैसे ING जो है वो एक सफिक्स है। लर्निंग, कि वो जो लफ्ज़ के बाद लफ्ज़ लगता है उसको पूरा मुकम्मल करने के लिए, इस तरह के ये छोटे वाले जो लफ्ज़ हैं उनको याद नहीं कर सकेंगे। ऊंचा बोलना या ऊंचा पढ़ना अगर आप इनको रीडिंग करने के लिए दे दें तो ये रीड नहीं कर सकेंगे, इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ये इसकी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ें इनको मुश्किल लगेंगी, ठीक है। पेंसिल की ग्रिप नहीं होगी। रिटन असाइनमेंट्स को अवॉइड करेंगे, लिखने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मेमोरी रिकॉल फास्ट नहीं होगा।
सोशल स्किल्स इन बच्चों के बहुत ज़्यादा पुअर होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू मेक फ्रेंड्स एंड दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप्स, एंड ट्रबल अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल लैंग्वेज। ठीक है, कि लोगों के जो बॉडी लैंग्वेज जैसे जेस्चर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनको कोई घूर के देख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों देख रहे हैं या उसको क्या चाहता है, इस तरह अगर हाथ के इशारे से इनको कुछ बताने की कोशिश की जा रही है तो इनको समझ नहीं आएगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन। ओके, अब हम आ जाते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड अडल्ट्स पे, कि अगर हाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या यंग अडल्ट्स वाली एज में बच्चे एंटर हो रहे हैं, तो उस एज में आप किस तरह के साइंस से आइडेंटिफाई करेंगे कि द इंडिविजुअल इज़ गोइंग टूवर्ड्स लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या क्या साइंस आ जाते हैं? सबसे पहले है कॉन्टिन्यूज टू स्पेल इनकरेक्टली, फ्रीक्वेंटली स्पेल्स द सेम वर्ड डिफरेंटली इन अ सिंगल पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, कि स्पेलिंग्स उनके गलत होंगे, और अगर होंगे तो बार बार वो स्पेलिंग रिलेटेड जो है वो गलतियाँ करेंगे। रीडिंग और राइटिंग टास्क को अवॉइड करेंगे। अवॉइड इसलिए करेंगे क्योंकि या तो एम्बैरेसमेंट होगी या उनकी वीकनेसेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी, इस वजह से वो ऐसे टास्क को अवॉइड करेंगे। चीज़ों को समराइज़ नहीं कर सकेंगे, जैसे आमतौर पर अगर उनको लेक्चर दिया गया, कोई चीज़ समझाई गई और उनसे पूछा गया है कि अब आप इसको समराइज़ करके बताएं या समराइज़ करके लिखें, they will not be able to do any summarizing related tasks either verbal or written। उसके बाद क्या है कि उनको प्रॉब्लम होगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनके एक्सप्लेनेटरी जवाब होंगे, जिनके जवाब येस नो में नहीं आ सकते, उस तरह के प्रॉब्लम्स, उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको ये आंसर नहीं कर सकेंगे। मेमोरी स्किल्स इनके काफ़ी ज़्यादा वीक होंगे, और नई सेटिंग्स में एडजस्ट करना इनके लिए प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर नए क्लास में जा रहे हैं या कोई इनका क्लासरूम चेंज हुआ है या कुछ भी इनके साथ नया लाइफ में हो रहा है, उसमें ये एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। अपने डेली रूटीन के जो एकेडमिक काम हैं वो बहुत स्लो स्पीड में करेंगे, दे विल डू इट वेरी स्लोली एंड वेरी इन अ स्पीड विच इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट साइन है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनको समझ नहीं आएंगे, यानी वो कॉन्सेप्ट्स जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, विच आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, वो इनको समझ नहीं आएंगे और समझाने भी नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मिस रीड्स इन्फॉर्मेशन, के इन्फॉर्मेशन जो इनको बताई जा रही है ये उसको समझेंगे गलत, बताया कुछ और जाएगा और ये समझेंगे कुछ और उसके अलावा क्या है कि बहुत ज़्यादा लेस अटेंशन ये पे करेंगे डिटेल्स को, कि आमतौर पे बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी डिटेल नोट करते हैं। ये लोग जो हैं या ये अडल्ट या ये बच्चे जो हैं ये डिटेल्स नोट नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें की, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखा और कामों को किया एंड दिल मूव ऑन। तो ये हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट ग्रेड लेवल्स पे किस तरह के साइंस और सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ मूविंग टूवर्ड्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिस्कस की, फिर हमने डिफरेंट क्लास लेवल्स पे उनके साइंस एंड सिम्टम्स यानी इंडिकेटर्स देखे कि क्या चीज़ें आपको नज़र आएँ तो आप ये असेस कर सकते हैं कि द चाइल्ड और इंडिविजुअल इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दीज लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले है नो योर चाइल्ड स्ट्रेंथ, कि ऑब्वियसली अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, बच्चे के अंदर कोई वीकनेस है, तो उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ्स भी होंगी। अब जो स्ट्रेंथ्स आपको उसके अंदर नज़र आ रही हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो म्यूज़िक है, आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, कोई क्रिएटिव एरिया है, उन स्ट्रेंथ्स पे काम करें, मेक हिम एक्सेल इन दो स्ट्रेंथ्स, ताकि जो वीकनेसेस हैं उसकी वो ओवरशैडो हो जाए और वो उन वीकनेसेस जो उसकी जो मुश्किलात क्रिएट कर रही हैं उसके लिए, वो उन स्ट्रेंथ्स की वजह से वही मुश्किलात उसके लिए सॉल्यूशंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज़ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, कि अब ये आपका काम है कि आप बच्चे के टीचर्स, कोई ट्यूटर्स हैं, कोई स्कूल में उसके कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ भी जो भी उस जहाँ से आपको चाइल्ड रिलेटेड परफॉर्मेंस मिल सकते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो आप लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे टाइम बाय टाइम कि वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, सो दैट यू कैन वर्क ऑन हिज वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट जो मैनेजमेंट पॉइंट जिसको आप जहन में रखेंगे वो है हैव योर चाइल्ड इवेल्यूएटेड। ठीक है, इवेल्यूएटेड का क्या मतलब है कि उसकी रेगुलर असेसमेंट्स कराएं, उसके ऐसे टेस्ट उसको दिलवाएं जिससे उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर हों,
आपको पता चले कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या वो रीडिंग में वीक है, क्या वो राइटिंग में वीक है, कॉम्प्रिहेंशन में वीक है, उसके वीक एरियाज़ क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो किन एरियाज़ में अच्छा है, किन एरियाज़ में वो एक्सेल कर सकता है। ये सारी रेगुलरली उसकी वैल्यूएशंस आप कराएंगे। ओनली देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन द चाइल्ड और टेक हिम टूवर्ड्स अ बेटर प्लान। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसको आप ज़हन में रखेंगे वो है वर्क एज अ टीम टू हेल्प योर चाइल्ड। ठीक है, इसमें एक चीज़ का आप ध्यान ये रखेंगे कि बच्चे की जो नीड्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रोफेशन पूरी कर सके। आपको टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टीचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको किसी पीयर ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखेंगे कि आपने एक टीम बिल्ड करनी है उस बच्चे को हेल्प करने के लिए, और हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है और बनाया जाना चाहिए, जिसको आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि उस बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स और नीड्स को ज़हन रखते हुए उसके लिए एक टेलर मेड प्रोग्राम बनाया जाता है, जिससे वो पर्टिकुलरली जो है वो बेनिफिट करता है और एक्सेल करता है। और इसमें जो है आप बच्चे की ना सिर्फ उन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और डिसेबिलिटीज़ पे काम करते हैं, बल्कि कैसे वो बच्चा फ्यूचर में आगे एक्सेल कर सकता है इस पे भी काम करते हैं। एंड यू फाइंड कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक द चाइल्ड एक्सेल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसका आप ध्यान में रखेंगे दैट इज़ टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमतौर पे इफ़ अ चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ लर्निंग डिसेबिलिटी तो उसको नालायक या उसको निकम्मा या उसको लेज़ी कह के जो है वो टीचर भी साइड पे कर रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू मेक एनी फ्रेंड्स। तो इसलिए आप उस बच्चे से उसकी डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि ही इज़ नॉट एबनॉर्मल, ही इज़ नॉट अ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड, ही इज़ नॉट लेस देन अदर चिल्ड्रन इन एनी फॉर्म, rather it's his disability which is creating difficulties for him। और बात करने से द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लर्न अबाउट हिज डिसेबिलिटी, उसको पता चलेगा कि वो ओवरऑल एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड नहीं है, इट्स ओनली द डिसेबिलिटी जिसकी वजह से लाइफ में उसके लिए मुश्किलात आ रही हैं। और इस बात करने के प्रोसेस में आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि यू गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद द चाइल्ड। आप उसको पूरा समझाएंगे, पूरी पिक्चर क्लियरली देंगे और इस तरह बात करेंगे कि आप उसके अंदर पेसिमिज्म नहीं डालेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू मेक हिम थिंक होपलेसली अबाउट हिमसेल्फ, rather you're going to make him think in an optimistic fashion about himself। आप उसकी डिसेबिलिटी के साथ साथ उसके टैलेंट्स, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसके एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जिनसे वो आगे फ्यूचर में लाइफ में गुजरेगा या गुजर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसको आप ज़हन में रखेंगे वो है फाइंड अकोमोडेशंस दैट कैन हेल्प, कि आप ऐसे एरियाज़ या ऐसी सोर्सेज ढूंढेंगे जिससे उसको हेल्प मिल सके। इसमें टीचर्स भी आ सकते हैं, उसमें कोई रीडिंग ट्यूटर्स आ सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, कोई प्लान्स आ सकते हैं, एनीथिंग विच कैन हेल्प योर चाइल्ड। इस तरह के सोर्सेज आप ढूंढेंगे ताकि आप अपने बच्चे की लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। उसके बाद आते हैं लास्ट चीज़ जो आप इस तरह की डिसेबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए करेंगे, दैट इज़ मॉनिटर योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या है कि आप उसकी वक्तन फ़वक्तन इवैल्यूएशंस करेंगे और उसके प्रायर लेवल से करंट लेवल तक जो प्रोग्रेस उसने की है उसको ज़रूर असेस करेंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो प्लान आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो किस हद तक उसको फ़ायदा दे रहा है। अगर वो फ़ायदा नहीं दे रहा तो यू कैन ईदर चेंज द प्लान, यू कैन टॉक टू द काउंसलर, यू कैन डिस्कस विद हिज मेंटोर, ताकि आपको पता चले कि उसको कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और जब तक आपको बेनिफिट नहीं पता चलेगा, जब तक आप उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं करेंगे, आप उसके लिए बेहतर प्लान ना बना सकेंगे, ना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अब उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए आप जो है वो रेगुलर मीटिंग्स कर सकते हैं उसके टीचर्स के साथ, आप उसके रेगुलर टेस्ट ले सकते हैं, उन टेस्ट को देख सकते हैं, आप उसको स्कूल में ऑब्जर्व कर सकते हैं पर्सनली कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसकी रीडिंग राइटिंग हैबिट्स क्या हैं। आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं पहले से लेके करंट लेवल तक। इस तरह के प्रोसेस से गुजर के आप उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ मैनेजिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, and with this we come to the end of today's lecture। और basically just to give you a quick recap, I'll repeat everything। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, some in basic details and facts about learning disabilities। उसके बाद हमने as per DSM कुछ basic types of learning disabilities डिस्कस की। फिर हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट क्लास लेवल्स पे किस तरह के साइंस और सिम्टम्स हों
जिनको देखते हुए आप असेस कर सकते हैं कि द चाइल्ड और द इंडिविजुअल माइट बी गोइंग टूवर्ड्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। और फाइनली हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की मैनेजमेंट को देखा कि उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए या आप कौन कौन से स्टेप्स लेके जो है वो उस बच्चे को हेल्प कर सकते हैं हु इज़ गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी। So class, this was the end of today's lecture, and by the end of the lecture you have an assignment which is to explain the types of learning disabilities, and you have to submit this assignment before your next class starts. And that was all for today's lecture. Meet you in your online class for further discussion and questions. Thank you.